Good morning, students. Good morning, teachers. Good morning, everyone. It's absolutely fabulous to be here. Because Bangla Foundation has been doing some great work for so many years, especially with environment, especially with making Bandra, not just Bandra, the entire city, I think, cleaner and greener. और आज काफी सारे जो we saw some of these wonderful people who've done such great job, be it cleaning of Versova Beach or cleaning of Chimbai Beach as Pujapan is doing. So I think no work is too big or no work is too small if you get started on it. And what better to start while they're still in school. Honestly, talking away, but my mind is still in flashback mode. And I used to be in this school and we were taught so many wonderful virtues, we were taught so many wonderful attributes, qualities. Of course, education is there, and along with it, we were taught so many things about being good human beings, and I think that has helped most of us come a long way. And I'm sure you're always going to. अभी शायद आप सबको लग रहा है कि स्कूल में हम क्या कर रहे हैं? We need to go to college. We need to, get more freedom, enjoy ourselves, stuck in this uniform for so many years. But as you grow, you realize that you want to be in that uniform. You want to be back in school all the time. अभी भी सपने आते हैं नॉर्मल में एग्जाम है और कुछ पढ़ाई नहीं हुई है और क्या होने वाला है तो मैंने सोचा कि स्पीच कम दूंगा और आज खुद पेड़ बन के आया हूँ देखिए ग्रीन शर्ट एंड वाक कलर एंड सो आई थिंक honestly I've been born and brought up in Bandra and a lot of people love Bandra today who moved in now, but they don't even know what Bandra really was. It was so much more cleaner, so much more greener, so much more beautiful. And today, of course, with more people, there's a boost of population, there are restaurants, there are offices, the concrete jungle is really showing. But we miss the real nature that was there in Bandra so many years ago. And I'm so glad and so happy that when Sir mentioned about all the work that's happening to Edgewort, where so many more trees are being planted, and all the work on sanitation and garbage is absolutely wonderful. हाल ही में मैंने गाना गाया था इंदौर नंबर 1 हो जाए और वो नंबर 1 हो गया in the cleanest city of India. So I quickly started looking at Mumbai कौन से पोजीशन पे है. Mumbai turned out to be 29. I was actually surprised that there are worse, even more dirty cities than Mumbai. It's 29. But I think Mumbai can do a lot better. We can keep our place a little more clean. And it all starts from not just our Anishra's boys, but also our St. Joseph's girls, Advanced students, and everyone present here. So do keep your environment, not just your home and your immediate environment, wherever you go in the world, keep it clean. उसके nature के दो meanings हैं ना English में. Nature is also the kind of behavior that you have, which you have good nature, and nature is also environment. So both go together. So have a clean nature and a clean nature. शान के बाद स्टेज पे आना काफी मुश्किल है गाना भी इतना अच्छा गाते हैं एक्सपर्ट भी है सबसे पहले आई लाइक टू थैंक मिस्टर आसिफ बांग्ला फाउंडेशन फॉर इनवाइटिंग मी एंड एवरीवन हियर ऑन द डायस ऑल द टीचर्स स्टूडेंट्स नमस्कार मैं एक क्लीशे बात बोलना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स आजकल हमको मालूम है कि आजकल के बच्चे मोस्टली आईपैड आईफोन पे खेलते हैं जब हम छोटे थे तो हम पेड़ पे चढ़ के खेलते थे या पेड़ पे टायर लटका लेते थे उसके अंदर खेलते थे अभी भी वही चीज अपने अंदर जागरूक रखनी चाहिए अभी भी मैं ट्रैकिंग वगैरह काफी करने जाता हूँ संडे को अहूपे घाट है वहाँ पे ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ जब तक आप नेचर को एक्सप्लोर नहीं करोगे एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते एक मैं अभी शूट कर रहा था एक ऐड का और वहाँ पे एक बाहर से लोग आए हुए थे डायरेक्टर और टीम वगैरह और जो हमारे जो लोग थे जो प्रोडक्शन में वो जितना भी खाना वगैरह था वो वहीं पे साइड पे फेंक रहे थे और जो बाहर वाले थे वो बोल रहे थे कि आप यहाँ पे क्यों फेंक रहे हो ये तो आपकी जगह तो मुझे उस वक्त इतना बुरा लगा कि बाहर वालों को आके हमको बोलना पड़ रहा है कि अपनी जगह को गंदा मत कीजिए तो ये
पौधे सैपलिंग्स ग्रो करना, एनवायरनमेंट को साफ रखना, ये हमको गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल भी। ये हम सबको ही करना है। जैसे आसिफ भाई ने बोला, हम लोगों में एक ये आदत है जरूर कि अपने आंगन को साफ रखते हैं और जो कचरा वगैरह है वो बाहर फेंकते हैं। तो लेकिन मैं उम्मीद रखूँगा कि जो आप बच्चे हैं ये और जो टीचर्स हैं ये ऑफकोर्स ये आपने शुरुआत से ही बदलने और क्लीनलीनेस, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करने की आदतें वगैरह ये रखने हैं। So I'd like to thank again Mr. Asif Amla for calling me the Asif Amla Foundation. Please keep your environment clean and put the garbage in the garbage bin. Thank you so much. Thank you, General Rajiv. Pooja Bhatt, please come. I just want to say all the guys, not many people know, but it is Mr. Sujay Thakur's 10th marriage anniversary. I don't know if we should congratulate him or congratulate him for lasting 10 साल हो चुके हैं इनको शादीशुदा हुए. So let's give a round of applause. Happy anniversary, Mr. Sujay. Distinguished guests, members of the faculty, and my dear young bright sparks out there. I think that you've been in a speech tower. You've heard a lot of speeches from the time you come in. But I'm just going to keep it simple, and I think I'm going to take you for more chance here, because coming here does make me nostalgic as well. Because I stand here in front of you not as an ex-star or a filmmaker, but I stand here as a Bandra girl, somebody who is kind of grown up in this part of town, and when people ask me where are you from, I say Bandra first before I say even Mumbai. There's something about Bandra, there's something about what we all learned growing up in Bandra, and what resonates in my heart are the first few lines that I ever read from the Bible, which says, in the beginning, God created the heavens and the earth. So if you do believe that God created the earth, and if you do believe that this earth is a gift from God, and you do believe that you and me are trustees and stewards, then it is our duty to protect this gift that's given to us and leave it in a better condition than when we found it. It is believed that we do not inherit the earth from our fathers, but we borrow it from our children. So if this earth is yours, guys, I want to ask you, what have you done today to protect it? Okay, all of you guys are here, you're going to be planting saplings, but you need to take this word beyond this hall. You need to walk this talk. It's not enough to merely sign a petition. It's not enough to merely tweet on your smartphone and retweet and like things on Facebook. You need to nurture, you need to have a sense of belonging and a sense of ownership. Each one of you sitting here can make a huge difference. You know, I go to the Versova beach cleanup with my friend Afroz Shah. I started single-handedly. Everyone told me 2 years ago, you're a madman, you'll never be able to do this. It's been done. It's been done because a sense of community exists on the floor there. And I've seen young kids who are not as privileged as you, who don't have the luxury of going to such a fine school as Stanislaus, who don't have teachers who are barefoot, who wear torn clothes, but they come on and they clean the beach with such passion and such love. And come on, guys, you guys have to be the change. Be the change. You know my sister Alia, I'm sure? Well, Alia does a lot for the environment. Each year on her birthday, depending on how old she is, we plant a tree. There's a tradition in our family. So come on, Alia says it's not cool to not care. So you must be cool and you must care. So do you promise to be cool? And you know, it's not fair that Sean is an ex-student here and can sing too. It's like a double whammy. You want to hear him sing one more song for you guys? I can't hear you. One more song for you. यही कर लो भाई. एक आदमी लाइट लगा लो ना यार. लाइट में लगा लेता हूँ. हाँ, मैं लाइट लगा लूँगा, मुझे सेंटर दो. Thank you, Asif bhai, for calling me here, and thank you everybody for being here. और
पेड़ को बचाना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट हमारा सुरक्षित रहे। इस इनिशिएटिव से साथ क्या कहेंगे और बच्चों के साथ अपनी टाइम स्पेंड? जी मैं तो यही कहूँगी कि वी नीड एक्शन नॉट वर्ड्स। तो अगर हम बातें कम करेंगे और एक्शन ज़्यादा दिखाएंगे ऑन द ग्राउंड, इट विल मेक द वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। ये जो बच्चे हैं वो हमारे फ्यूचर हैं। सो ईच वन ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू रियली ट्रूली चेंज द वर्ल्ड। एंड मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो एक बैंड्रा की लड़की हूँ। To be here in Stanislaus kind of makes me very nostalgic, and I just go back to the word that I read in the Bible, which says that, you know, in the beginning God created the heavens and the earth. तो अगर हम ये बिलीव करते हैं कि ये अर्थ जो है हमें एक गिफ्ट, एक तोहफा मिला है भगवान से, तो फिर हमें इसकी सुरक्षा करना ये हमारा एक ड्यूटी है। अगर हमारी राइट्स हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो आई थिंक ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बस उनके अंदर थोड़ा पैशन जगाना है, उनको सिखाना नहीं है। हम यहाँ पे ज्ञान देने आए नहीं, हम उनके साथ उनके अंदर थोड़ा मतलब उनको छेड़ने आए हैं, उनका पैशन जो है थोड़ा छेड़ने आए हैं। एंड आई थिंक दैट टुगेदर इज़ हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्योंकि कम्युनिटी के बगैर कुछ नहीं होगा। पहले के इन्वायरमेंट में और आज के इन्वायरमेंट में कितना फ़र्क आप देखती हैं और बच्चों में कितना अवेयरनेस आना चाहिए इस चीज़ को लेकर? जी बच्चों में तो काफ़ी अवेयरनेस है। आई थिंक कि हमें अपने आप को री एजुकेट करना है, बहुत ज़रूरी है कि हम कंज्यूम कम करें, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली करें और बस फील्ड पे आके, ग्राउंड पे आके थोड़ा काम करें। सिर्फ ट्वीट और रीट्वीट और बाइट्स देने से काम नहीं होगा। बाहर जाके थोड़ा हाथ थोड़े मैले करने पड़ेंगे, गंदे करने पड़ेंगे, कचरा उठाना पड़ेगा। यू हैव टू बी द चेंज, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। जी बहुत ही अच्छी बात है, एंड वी नीड मोर सच इनिशिएटिव्स, एंड लाइक आई सेड ऑल ऑफ अस आर बेटर देन वन ऑफ अस। आपने एक बहुत ही अच्छा स्टैंड इनिशिएटिव मैं कहूँगा कि जो आसिफ जी ने उठाया वो बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारा देश है इंडिया ने अभी आगे बढ़कर इसमें वो कदम लेना है, स्पेशली क्योंकि अमेरिका हैज़ बैक्ड आउट फ्रॉम दी पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। तो इंडिया हैज़ टू बी एट द फोरफ्रंट। सो आई एम ग्रेट दैट आसिफ भाई इज़ टेकिंग दिस स्टेप। और एक और चीज़ जैसे पूजा ने बोला था, ये हम सबको करना है। मैंने भी ये बात बोली थी, ये आप ये मत उम्मीद रखिए गवर्नमेंट से कि वो आके ये सफाई करेंगे और वो आके आप ये करेंगे। ये हम सबको करना है। हम सबको सिर्फ अपने घर नहीं, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है। जो पेड़ हैं उन सतर्क रहना है कि वो ना कटें और वो नेचर को जाके इंजॉय करना है। जब तक आप उनको यूज़ नहीं करेंगे, इंजॉय नहीं करेंगे, तब तक वो सेफ गार्ड नहीं रहेंगे। और कई बार स्ट्रेंज लगता है कि हम सबको ये बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सिर्फ बाहर हम जाते हैं तो ये हम फॉलो करने लगते हैं बाहर वालों के रूल्स की सफाई यहाँ पे इसमें फेंको, लेकिन हम अपने देश में आते हैं तो फिर कचरा गाड़ी खोली और खिड़की के बाहर कचरा फेंका या पेड़ कटने शुरू हो गए। तो ये हम अपने देश में रूल्स को कम फॉलो करते हैं। आई थिंक वी शुड नीड टू start respecting the environment more, and like Pooja was also saying, put it into action and not just on social media. सर
एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस किस तरह से बढ़े, आपकी क्या राय है? किस तरीके से बढ़े, एक्चुअली ये बड़ा एक ताज्जुब होती है जब ये क्वेश्चन आता है मुझे ये कि किस तरीके से बढ़े। हमें खाना किसने सिखाया, हमें नहाना धोना किसने सिखाया, कपड़े पहनना किसने सिखाया। तो जिस तरीके से ये रोज़ की जो हैबिट होती है, इसी तरीके से साफ़ सफाई की भी हैबिट होनी चाहिए। और ये सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, तभी ये आलम हो रहा है। जो जगह जिस चीज़ के लिए बोलते हैं ना, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, हम सब जगह की क्रेडिट खाए जा रहे हैं। जो जगह जहाँ पर वॉक के लिए ज़रूरी है, झाड़ पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, बल्कि कोई दूसरी चीज़ें हैं। सो मुझे बल्कि अभी खुशी एक होती है कि हर जगह पर इसका इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और आई एम रियली ऑनर टू बी विथ आसिफ भाई, आसिफ बामला फाउंडेशन, बिकॉज उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट के साथ वन महोत्सव के अंदर। और ये वैसे भी हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं जब मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट को लेके उनकी जो चिंताएं हैं वो हमेशा रहती है। तो मुझे लगता है कि पीपल लाइक आसिफ बामला जी आर देयर, यू नो, एंड लॉट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री गाइज आर देयर, यू नो, ऑल स्टार्स आर टेकिंग इनिशिएटिव इन दिस। तो आई थिंक जब सभी सोच रहे हैं तो आम आदमी को भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि जो रोड पे आम आदमी चल रहा है उसको इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चलते चलते बीड़ी सिगरेट फेंक देता है, वो चलते चलते पान का वो फेंक देता है चलते चलते। तो ये बच्चों को भी, हाँ, तो वो अब क्या है, जैसे अब घर में हम खाना खाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, घर में हम खाना खाते हैं, अगर हम अपनी प्लेट उठा के धो दें तो कितना अपनी मॉम के ऊपर कितना बोझ कम हो जाएगा, या जो काम करने वाले हैं उन पे कितना बोझ कम हो जाएगा। या कुछ नहीं तो उठा के रख दें, क्या होगा, उठाएगा भी एक ही आदमी, ला के देगा भी एक ही आदमी, परोसेगा भी एक ही आदमी, धोएगा भी एक ही आदमी। तो वो एक आदमी पे कितना बोझ हो रहा है, ये समझ रहे हैं ना आप। इसी तरीके से बोझ है, अगर सब मिलके साथ दें, टीम वर्क हो, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग थिंग, इट कैन बी सॉल्व वेरी सून। कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो है, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए एफर्ट की कमी है। एफर्ट की कमी है, एफर्ट हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। एफर्ट, पीपल आर टेकिंग एफर्ट, बट स्टिल एफर्ट लेने की मुझे लगता है कि एफर्ट नहीं होना चाहिए, एफर्ट लेस होना चाहिए।